We're almost there. Yes, I think it's streaming live now. We're live. Sanjeev ji, we are live. Hello. Sanjeev ji, we are live. Sanjeev ji, we are live. Happy Friday afternoon to all of you, and thank you so much for tuning into Radio Zindagi, America's biggest South Asian radio network. On this day, October 2nd, 2020, I am Sanjeev, coming live to you from Radio Zindagi studio in Edison, New Jersey. Radio Zindagi being America's biggest and most popular South Asian radio network, 5:40 a.m. in New Jersey, Connecticut, 13:10 a.m. up in Parsippany, Morris County area, 96.7 FM, that's in Edison, Middlesex County area. Then we are in DC, Maryland, Virginia, and then Radio Zindagi on the West Coast, loud and clear on 11:70 a.m. Radio Zindigi's West Coast Facebook page is Radio Zindagi. Radio Zindigi's DC Metro page is Radio Zindagi DC Metro. And then, of course, for the East Coast, it's the Radio Zindagi Tri-State. As we welcome you all for this special show, as you know, the Friday afternoon is always the artist hour on Radio Zindagi, Friday afternoon here in the East Coast and Friday morning on the West Coast. So good morning to the listeners in the West Coast, and then once again, good afternoon to all of you. Now, before I introduce the artist of today, I must tell you that this artist, I would say, one of the most lovable, one of the most humble individuals. एंड जितनी उनकी आवाज मीठी है उतना ही उनका अंदाज मीठा होता है. जब भी कभी भी मिलो तो यू विल नेवर फॉरगेट हिम बिकॉज यू नो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. एंड वही उनकी जो मिठास है वही गायकी में आती है. एंड देन वी ऑल लव द सॉन्ग्स दैट ही हैज संग. Obviously, we have seen him in the stage shows, and we have seen him on TV as a part of reality shows as well. And that is the individual that I'm getting ready to introduce. But before that, let me just say hello to my colleague sitting in the Radio Zindagi studio, West Coast, Ira. Ira, good morning to you. And how are you? And let's get ready for the special show. Absolutely. Hi, Sanjeev, and hello, listeners. Good morning to West Coast, and good afternoon to East Coast, and good evening to IST, Indian Standard Time. Hello, Sanjeev. Thank you very much for being here to do this with me. It's an absolute honor to be talking to this artist. Yes, and very, very special artist. जैसा मैंने कहा कि very lovable artist, has a sweet voice, and a perfect gentleman, a very, very humble human being. Ladies and gentlemen, please get ready to welcome the award-winning singer and the singer that we love most, one and only Javed Ali, live on Radio Zindagi, East Coast to West Coast, and watching us live on Facebook. Javed bhai, namaskar, assalamualaikum, welcome to the show. Namaskar, assalamu alaikum, Sanjeev ji. Thank you so much for calling me, and really privileged कि आज आप सब लोगों से जुड़ रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए और आई होप सब लोग मजा करेंगे. Absolutely, जावेद भाई, हमारे लिए तो ये स्पेशल मोमेंट हुई बिकॉज आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और यहाँ पे ज्वाइन हुए, तो वी आर थैंक यू सो वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूंगा, घर में सब खैरियत है, एवरीबॉडी इज ओके, या बैक होम इन इंडिया? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा है. मैं अभी मुंबई से ही ऑफ कोर्स मुंबई में हूँ और मेरे फैमिली में भी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं और थिंग्स आर गेटिंग बेटर हियर इन मुंबई और so but let's see क्या होता है. अच्छा, वेरी गुड. इन दिस शो जावेद भाई आपसे बातें करेंगे आपके जो अभी रिसेंटली एक के बाद आपके जो हिट गाने आए उसकी भी बातें करेंगे और आप गाओगे, हम सबको सुनाओगे. लेकिन जो मेरी को होस्ट है ईरा, वो कब से बेसब्री से इंतजार कर रही है आपसे बात करने का, आपको ढेर सारे सवाल पूछने का और गाने गाने के लिए. सो नाउ आई एम गोना लेट ईरा स्टार्ट एंड इन बिटवीन आई विल बी जॉइनिंग यू. जावेद भाई जरूर. थैंक यू संजीव. तो लिसनर्स, जैसे कि हम बात पहले बोल रहे थे कि दिस आर्टिस्ट हियर जावेद भाई, ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन. सब लोग जानते हैं
2 साल पहले मेरे ख्याल से when he had come here for a tour, उस टाइम पे भी जो जादू उनका यहाँ पे रहा वो लोग आज भी याद करते हैं. And he has won so many awards because of all this, all of his talent. IFA Awards से लेके Screen Awards, Mirchi Music Awards, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक स्पेशल अवार्ड रहा है, इंडिया टीवी का स्पेशल अवार्ड रहा है for Jodha Akbar, for Rockstar, for Ishaq Zadeh, for so many, of so much of his work. So absolute honor, absolute privilege to have you here. इतनी सारे लैंग्वेजेस में जावेद अली गाना गाते हैं, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, उर्दू, एंड काफी छोटे उम्र से जावेद भाई you've been singing along with your father, who was a very popular and established qawwali and kirtan singer at the same time. Am I right? Right. So you have मैं always बहुत, had that influence. नहीं, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे एक ऐसे पर जन्म मिला है कि जहाँ पे ऑलरेडी म्यूजिक का माहौल था और या फिर कुछ अलग से म्यूजिक को अडॉप्ट करना नहीं पड़ा. ऑलरेडी मेरे फैमिली में म्यूजिक था और बहुत इजी होता है इस तरीके से अगर आपके फैमिली में म्यूजिक होता है और आपको आपके जीन्स में भी वो कहीं ना कहीं रहता है. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. मेरे फादर म्यूजिक में थे, मेरे 4 फादर्स सब म्यूजिक में थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा एक लगाव म्यूजिक की तरफ हुआ और मैं म्यूजिक की तरफ आया. और बचपन से मुझे बहुत शौक था, घर में माहौल था और बड़े बड़े उस्तादों को सुनते थे, बड़े बड़े गवैयों को सुनते थे हमारे घरों में. तो मेरा म्यूजिक की तरफ काफ़ी रुझान मेरा टेस्ट डेवलप हुआ और मेरे डैडी को लगा, उन्होंने मुझे सिखाया म्यूजिक, पहले खुद सिखाया और फिर उसके बाद में मुझे अलग अलग गुरु से मुझे सिखाने के लिए मेरे डैड ने मुझे एनकरेज किया. Right. तो Because दिल्ली में काफी you were there और दिल्ली से शुरू हुई थी आपकी जो शुरुआत और वहाँ पे तो क्लासिकल म्यूजिक का काफी कल्चर भी है. We have a lot of जी. theater, we have a lot of classical music over there. तो शुरू से आपको जो इन्फ्लुएंस रहा है, ऐसा नहीं रहा that you wanted to do it but you didn't have the support. You always had it there with you. एब्सोल्युटली. मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है मेरे फैमिली का और किसी भी सिचुएशन में जब भी मैं आया हूँ मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे फैमिली का. और म्यूजिक में ही करना था जो भी कुछ करना था. बस खुदा का शुक्र है कि मुझे एक बहुत ही एक कामयाबी की तरफ ऊपर वाला मुझे लेकर गया और लोग बहुत प्यार करते हैं. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का कि आप मुझे बहुत प्यार देते हैं. That is amazing, beautiful, beautifully said. Also, यहाँ पे संजीव भाई and I were discussing पहले कि आप जब भी आपकी स्टोरी आती है, जावेद अली का नाम आता है तो आपके जो गुरु रहे हैं गुलाम अली साहब, उनकी बात भी होती है. So, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है. आपसे ये स्टोरी सुनना चाहते हैं हम कि उनका क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में. जब मैंने हालात तो मैंने गुलाम अली खान साहब को सुना और मुझे बहुत उनकी गायकी से बहुत मजा आया उनकी गायकी सुन के. और मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं उनसे सीखूं, बट ना वो पाकिस्तान में रहते थे और मैं इंडिया में रहता था. तो वो शोज के और कॉन्सर्ट्स के लिए इंडिया आते थे, तो तब मैं उनसे मिलता था और इस तरह से उनसे मेरी उस्तादी और शागिर्दी हुई, जिसको हम कहते हैं ना कि गंडा बांधना जब आप किसी के शागिर्द होते हैं. तो उस तरह से मेरा उनसे हुआ. और जहाँ तक नाम की बात है तो नाम भी मैंने उनकी वजह से चेंज किया अपना. मेरा नाम जावेद हुसैन था, मेरे डैडी का नाम हामिद हुसैन था. तो मैंने मेरे डैडी से एक बार ऐसे ही पूछा कि पापा अगर मैं अपना नाम जावेद हुसैन की जगह जावेद अली करूं, बिकॉज गुलाम अली खान साहब को मैं बहुत पसंद करता हूं, तो ऐसे इज इट पॉसिबल? तो मेरे डैड ने बोला बिल्कुल, क्यों नहीं. तो उनकी इजाजत से फिर मेरा नाम चेंज हुआ और मेरा नाम जावेद अली हुआ. और जावेद अली जब से मेरा नाम हुआ है तो मेरी लाइफ में बहुत फर्क आया. मेरी लाइफ में उछाल आया. मेरी लाइफ में एक बहुत ही कहेंगे ना कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. तो वो बहुत बरकत थी जावेद अली नाम में. और थैंक्स कहना चाहूंगा गुलाम अली खान साहब को और ऑफ कोर्स मेरे डैड को.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू नो आपके शुरू से आपके फादर का हाथ आपके सर पे रहा और यू नो उसके आगे जाके फिर आपके गुरु का हाथ आपके सर पे रहा, तो डेफिनेटली बरकत होगी, कैसे बरकत नहीं होगी? व्हाट डू यू थिंक संजीव, व्हाट डू यू से, एम आई राइट? एब्सोल्युटली, यू नो, ये बात मैं और जावेद भाई कई बार कर चुके हैं, और जावेद भाई मैंने जैसे पहले भी कहा था कि गुलाम अली खान साहब के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, और यू नो करियर में बरकत आई वो तो आपने बताया, लेकिन आप खुद टैलेंटेड हो एंड आपने खुद अपनी करियर बनाई, बट कहीं से किसी ना किसी का ब्लेसिंग होता है, तो वहीं से शुरुआत हुई। जावेद भाई, आपके बहुत सारे गाने इतने पॉपुलर है, मैं ये मानता हूं कि रेडियो पे कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन आपका एक गाना भी ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन लेटली ये पैंडेमिक में मुझे लग रहा है कि आप काफी बिजी रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, दो प्रश्न पूछने हैं लेकिन एक तो इरा करेगी, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि सड़क 2 के बारे में बताइए, हाउ डिड दैट हैपन? इश्क कमाल जो गाना है वो कमाल कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी सी इनसाइड बातें बताइए। देखिए, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था और पैंडेमिक स्टार्ट नहीं हुआ था, तब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, और इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले ऐसे ही मैं अपने बिल्डिंग में, अपने कंपाउंड में ऐसे ही वॉक ले रहा था, और मुझे अचानक से कॉल आया जीत गांगुली जी का, और उन्होंने कहा कि जावेद एक गाना है और वो आपको डब करना है। मैंने कहा किसका गाना है, किन का गाना है? उन्होंने कहा भट्ट साहब का गाना है, और वो गाना तेरे से अच्छा कोई गा नहीं सकता, ये लफ्ज उन्होंने कहा। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि भट्ट साहब बात करना चाहते हैं, तो मुकेश भट्ट जी ने मुझे कॉल की, से मेरे बात की और कहा कि बेटा एक गाना है और मैं चाहता हूँ तू गाए वो गाना, तो प्लीज ना कल ना तुम्हारे साथ में मैं मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तुम ऑफिस में आ जाओ। तो मैं उनके ऑफिस गया नेक्स्ट डे, और गाना उन्होंने सुनाया, और उन्होंने कहा कि इस गाने में एक शिद्दत चाहिए मुझे, इस गाने में एक दीवानगी चाहिए मुझे, और मैं जानता हूँ तुम्हारी आवाज में वो बात है, तो इस गाने को तुम गाओ बेटा। और गाना बना, गाने का ट्रैक मुझे सुनाया गया, और मैंने कहा सर इस गाने का जो ट्रैक है वो बहुत ही खूबसूरत है, और मैं ज़रूर डेफिनेटली इस गाने को गाऊंगा, लेकिन इस गाने को मेरे ऊपर सौंप दिया जाए कि मैं अपनी तरफ से इस गाने को अपने अंदाज में गाना चाहता हूँ। कहने लगे ये आपके गाना है और आप ही गाओ इस गाने को। और फिर उसके बाद में भट्ट साहब, जब रिकॉर्डिंग का दिन आया, और रिकॉर्डिंग के दिन जब मैं माइक पे गया, तो आप यकीन मानेंगे, जब मैं गाना शुरू किया तो भट्ट साहब ने गाना रोक दिया और कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ सिर्फ एक अल्लाह को आप मानते हैं, और उस एक अल्लाह के लिए ये गाना गाओ, मैं ये चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भट्ट साहब। और जब मैंने गाना शुरू किया और गाना खत्म हुआ, गाना खत्म होने के बाद में साहब ने मुझे गले से लगाया और कहा कि मैंने क्या सोचा था और गाना किस लेवल पे पहुंच गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक खुशकिस्मती की बात है कि एक तो मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं भट्ट साहब के लिए, चाहे वो तुम मिले हो, चाहे वो राज 3 हो, चाहे वो जन्नत 2 हो, चाहे वो और भी फिल्म्स हो, तो बहुत गहरा नाता है उनके साथ में। तो ये एक और गाना बहुत ही खूबसूरत सा मेरी लाइफ में जुड़ा, और मैंने ये गाना पूरी शिद्दत के साथ गाया, और इस गाने का जो रिस्पांस भी मुझे मिला, बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे फोन आए। Tremendous response, Javed bhai. We wish you all the best. Congratulations. Very, very well sung. तो थैंक यू सो मच। आप जो कह रहे हो कि आपने अपने तरीके से गाया, जिस तरह से गाया, और उन्होंने आपको पूरी मतलब फ्रीडम दे दी कि भाई जावेद भाई आप अपने तरीके से गाओ, तो पहले संजीव जी एक चीज ये भी होता है ना कि एक सिंगर जब गाना गाता रहता है तो उसके दिमाग में अगर ये चले कि ना आपको कोई और रिप्लेस कर सकता है, तो फिर कहीं ना एक टेंशन रहती है, हाँ इनसिक्योरिटी रहती है कि ओ माय गॉड आपको रिप्लेस कर सकता है कोई भी। लेकिन जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ये बात कहें कि ना बेटा ये आपकी गाड़ी है, इसमें आपके अलावा कोई नहीं चढ़ेगा, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और फिर आप अपनी जान निकाल के रख दी थी उसमें। तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ गाया। हालांकि इस गाने का एक ही अंतरा रिलीज हुआ, 2 अंतरे मैंने गाए थे, दोनों अंतरे अपने आप में बहुत ही कमाल थे, बट ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से एक ही अंतरा इस गाने का आया।
तो हमें दूसरा अंतरा सुना सकते हो आप, या तो I was complete हो was जाए? waiting. I Fortunately, knew कि संजीव unfortunately, आएंगे यहाँ पे पहला अंतरा दूसरा अंतरा लेके he will make you sing this song and जी definitely बिल्कुल, बनता ताकि है. कंप्लीट हो जाए ना, हमारा काम भी कंप्लीट हो जाए। हमारे बॉसेस को भी अच्छा लगेगा कि हमने दूसरा अंतरा आपसे गवा लिया। नहीं नहीं, एक काम करता हूँ मैं, इस गाने जी का ना वर्ड्स तलाश करता हूँ एंड देन जी, आई विल सिंग दिस सॉन्ग। चलो वेरी गुड। लेडीज एंड In fact, जेंटलमैन ऑन इश्क एक मिनट हीरा, कमाल लिरिक्स। हाँ एक जी. मिनट, हाँ हीरा। Ladies and gentlemen, on Radio Zindagi, East Coast to West Coast, this Friday afternoon or Friday morning in West Coast, we are having our artist of the day, one and only Javed Ali Saab. He's with us. He's joining us live from Mumbai, India. और अभी तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो मूड में आ रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे गाने गाएंगे, and we're gonna have a complete entertainment from Javed Ali right now on Radio Zindagi. Yes, Hira, go ahead. I was just Okay. saying कि काफी सारे Facebook लाइव पे हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं, रेडियो जिंदगी पेज पे listeners, we are live. You can also view this conversation over there. And needless to say, आपकी अगर कोई खास रिक्वेस्ट है, आप वहाँ पे अपने कमेंट्स पे लिख सकते हैं. काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी रिक्वेस्ट वहाँ रखी है, नैना लड़े, तुम तक, Okay. और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी हैं. तो we'll come to that gradually. पर अभी जो है हम पहला अंतरा दूसरा अंतरा सुनने वाले हैं. बिल्कुल। Okay. I'll sing couple of lines of this song. इश्क कमाल from सड़क टू। हालांकि क्या होता है कि जब आप संजीव जी और ईरा, जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं और अपने गाने गाते हो, तो गाने क्या होता है कि वो पक जाते हैं। अब ये गाने हम लोगों ने जब से रिलीज हुए कोई कॉन्सर्ट नहीं हुआ है, तो हमने गाए भी नहीं ये गाने। तो इस तरीके से हमें गाने का मौका मिल रहा है। Nice, very good. ओके, Luckily for सॉन्ग us. गाते हैं। ओके। तारा तारा गिन के रातें बिताई, नैना नू जद कोई दीद तरसाए, हो हाय तारा तारा गिन के रातें बिताई, नैना नू जद कोई दीद तरसाए, भीड़ में रह के भी कोई तन्हा रह जाए, यादां दी महफिल दिल कल्लियां सजाए, बस चैन यार ते करार यार इस जिंदगी दी दरकार यार, बस चैन यार ते करार यार इस जिंदगी दी दरकार यार, कमड़ी बढ़ा के इश्क नचावे बिन सुर ताल, इश्क कमाल इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल, इश्क कमाल इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल। अंतरा। नैना चुपीवे मरे ना जीवे, चढ़ जाए जिसनू खुमार इसदा, खुद से बेखबर को मस्त नजर को, अखा सावे शीशे चूवे यार दिसदा, शीशे चो यार यार दिसदा, यार दिसदा, ना ये समझे किसी के समझाए, बस अकला दे कदे ना आए, कैसी प्यास ये कोई तो बताए, कोई दरिया भी जिसे ना बुझाए, बस आस यार एक प्यास यार, जिंद यार पास जिंद पास यार, बस आस यार एक प्यास यार, जिंद यार पास जिंद पास यार, इश्क कटारी रोक ना पावे कोई भी ढाल, इश्क कमाल इश्क कमाल,
जिस तन लग्या इश्क कमाल, इश्क कमाल, इश्क कमाल, जिस तन लग्या इश्क कमाल। Beautiful, beautiful. बहुत अच्छे जावेद भाई, very very nice, very nice. You know, इरा, मैं एक बात बोलूं जावेद भाई के बारे में कि जहाँ पे भी वो गाना गाते हैं, कॉन्सर्ट में, स्टेज शो में, वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे भी जब भी मिले ऐसे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जो भी अगर उनको गाने के लिए बोला जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, वो गाना गाते इतना दिल से, पैशन से गाते हैं ना. It's always, I would say, a really great experience to listen to Javed Ali Ji singing live when he's sitting next to you, and especially in this case, because of pandemic, we're live on Zoom and Facebook. So Javed bhai, you are just amazing. Very good. Thank you very much. Thank you so much. Thank you all my fans. Yes. जो मुझे सुन रहे हैं और मुझे appreciate करें. Thank you so much. अभी तो That's what I'm शुरुआत हुई, saying, अभी right? जाने का वक्त नहीं हुआ है. He will not let you go, Javed bhai. You know Sanjeev ji, he will not let Yes. you go so easily. मैं जानता हूँ, 2 साल पहले, exactly 2 साल पहले when Javed ji had come to Bay Area and जो concert हुआ था, मैं that's what I was telling introduction में, जब मैंने कहा था कि लोग आज तक उस जादू को याद रखते हैं जो माहौल बना था, और खास करके जब आपने कुन फाया कुन गाया था, that was absolutely magical. So we in fact have one of those requests also. Thank you for requesting listeners. बहुत सारे लोग Facebook पे भी जुड़े हैं. जावेद जी, बात जब हो रही है लेटेस्ट गानों की, तो इस साल में जो आपके 4-5 गाने खास करके एकदम छप्पर फाड़ के फेमस हुए हैं, यू नो, ये वाला खुदा हाफिज से एक गाना है, सड़क 2 से जो भी आपने गाना गाया, बैंडिज बंडिज का एक गाना है लपर आई, और ये सारे गाने जो है वो अलग अलग जॉनरा के रहे हैं. सो दिस वन यू नो इज अ लिटिल सूफियाना, जो आपने महेश भट्ट जी की मूवी का बताया. देन खुदा हाफिज से जो रहा है टाइटल सॉन्ग, वो अनप्लग्ड वर्जन है, एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल वेस्टर्न. इज दैट राइट? Yes, of course. इस गाने को of course इस तरह का जो जॉनर है, या इस तरह का जो अंदाज है, और इस तरह का जो एक स्टाइल है, वो मैंने पहले कभी नहीं गाया. और मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा वेस्टर्न अंदाज में गाया है, और गाने में डायनेमिक्स बहुत हैं, और of course मैंने पूरे पैशन के साथ गाया है इस गाने को. So do you want to sing that also for our listeners a little bit? Okay. Yes, of course. हम मिलेंगे फिर किसी दिन, तब तलक खुदा हाफिज. हम मिलेंगे फिर किसी दिन, तब तलक खुदा हाफिज. ये जुदाइया है कुछ दिन, तब तलक खुदा हाफिज. पल ये बीत जाएगा, वक्त लौट आएगा, वक्त का बहता ये दरिया फिर किनारे लाएगा. याद रखना मुझको मोहसिन, तब तलक खुदा हाफिज. ये जुदाइया है कुछ दिन, तब तलक खुदा हाफिज, खुदा हाफिज. Absolutely beautiful. Thank you Wonderful. for singing that for us. Javed bhai, you officially started singing in Bollywood in the year 2007, right? In fact, 2000 में शुरू किया था आपने. I'm sorry. और लाइमलाइट जो थी, जो फोकस आप पे आया, वो आया था 2007 में, जब आपने नकाब का गाना गाया. That was एक दिन तेरी राहों में. Exactly. The Sanjeev ji wala, you know, you also know, you were talking about this before. And then there was no looking back. Jashn Bahara from Jodha Akbar, Delhi 6 se, you know, you had Arziyan, then you had Kun Faya Kun, Rockstar se, Gajni se, Guzarish, so many other songs. तो 7 साल अजब प्रेम की गजब कहानी, अजब प्रेम की गजब कहानी, मतलब then the list goes on. Then there was no बहुत looking सारी back.
बहुत सारे थे एब्सोल्युटली। सो 2000 में आपने गाना गाना शुरू किया, 2007 में जब फोकस आया, 7 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कीप ट्राइंग, यू नो, कि आप करते रहे अपना काम। डिड यू नेवर फील लाइक गिविंग अप कि हम तो कुछ बात नहीं बन रही है? हाउ डू यू डू गो अबाउट दिस थिंग? मन नहीं किया कि छोड़ दो, बस अपना काम करते हैं, यू नो, आई डोंट वांट टू गो आफ्टर द सक्सेस एनीमोर? एक्चुअली कभी ऐसा मन में आया नहीं, क्योंकि मैं म्यूजिक के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता था और करना भी नहीं चाहता था ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी करना था म्यूजिक में करना था। और क्या, आपको हमेशा अपनी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सोचना चाहिए कि आप लगे रहने चाहिए, आपको कामयाबी मिलके ही रहेगी। तो ये एक जो कॉन्फिडेंस था ये मन में था, और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, और कहीं ना कहीं ये यकीन था कि मंजिल ज़रूर मिलेगी, और मिली, और बहुत अच्छी मिली। You deserve it. You deserve it. Definitely deserve it. अच्छा ईरा, अब एक काम करते हैं, बिफोर वी गो एनी फर्दर, हमारे इतने सारे लिसनर्स हैं जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसमें से कोई भी एक गाना पिक करो, या तो किसी लिसनर की जो रिक्वेस्ट है, जो जावेद अली साहब को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा सा लिसनर्स के बारे में बात करते हैं, फिर देन हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। Perfect timing, Sanjeev, because I was just now looking at Facebook comments. You have एक दिन तेरी राहों में, you have लब पर आए, कहने को जश्न बहारा है, कुन फाया कुन. There is so many रिक्वेस्ट बांग्लादेश से, दुबई से, सब जगह से लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं. सो लेट्स हैव कहने को जश्न बहारा है. What do you think, Javed ji? I'll start. So I'll sing Lab Par Aaye after this song. Okay? Okay. Okay, very good. Okay. Right. कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है. कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है. फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में. सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं. हो कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है. फूल खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में. Beautiful. पता ही नहीं चल रहा ईरा कि हम ये ओरिजिनल गाना सुन रहे हैं या तो जावेद भाई लाइव गा रहे हैं. सब ओरिजिनल है संजीव जी, सब ओरिजिनल है. नहीं मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मतलब नो, मेरे कहने का मतलब क्या था, जो रिकॉर्डेड ट्रैक है, ओरिजिनल ट्रैक, वो सुन रहे हैं कि वो लाइव गा रहे हैं, पता नहीं चल रहा. इतने अच्छे एब्सोल्युटली, that's what I'm saying. You know, Javed bhai is singing, अब recording है कि सामने है, it is absolutely same. इसलिए सब कुछ उनका जो है सामने गाया हुआ है. Thank you so much for sharing that with us. And people have been commenting कि आपकी आवाज में जादू है. Thank you for doing this live. You know, everybody they have been saying that they are your biggest fan. लोगों के comments मुझे देखने को नहीं मिल रहे, तो मुझे वो एक जोश आता है ना, वो नहीं आ रहा है. Trust me, you have a lot of comments. Yeah, that's why I'm reading this out to you. जावेद सर, आप आशा ताई के साथ हैदराबाद आए थे. आप आशा ताई के साथ हैदराबाद आए थे. आया. हाँ, so people have been commenting about that as well. So moving on, Javed bhai, so many genres that you sing. You know, Sufi of course is one of the biggest things that you are also famous about. Kun Faya Kun की request आई है, उसके लिए भी we will go. तो अगर, you know, what do you sing when you are, you know, just all by yourself? कोई सुनने वाला अगर नहीं है अपने लिए, what does Javed Ali sing for himself? मुझे पता है. मैं मैं या तो फिर है ना मेरे लिए, या फिर कुछ मैं क्लासिकल गाता हूँ, या फिर मैं कोई गजल गाता हूँ, या फिर कोई नॉन फिल्मी कुछ गाता हूँ, या फिर है ना कुछ इस तरह का कुछ गाता हूँ मैं, जो कि सिर्फ अपने लिए होता है, और वो बहुत है ना स्पेशल होता है. फिर आप जब अपने लिए गाते हैं तो कुछ खास ही होता है कुछ. तो क्या सुनाऊं मैं आपको?
उस बारे में। मुझे जावेद भाई मुझे पता है कि आप रफी साहब के गाने अकेले में बहुत ओह हाँ, जी 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 जरूर, वो भी मैं सुनाऊंगा जी। तो मैं I'll pick some beautiful romantic song from the movie. ओके ओके, एक गाना मेरा बहुत फेवरेट है फिल्म चिराग से, जिसका म्यूजिक दिया है मदन मोहन जी ने, और इस गाने को गाया है ऑफ कोर्स द ग्रेट मोहम्मद रफी साहब ने. So I'll sing a couple of lines of this song. चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है. चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है. कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है. चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है. कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की, कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की. तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की, उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है. चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है. वंडरफुल. ऐसा लग रहा है जावेद भाई कि हम कुछ बोले नहीं, आप गाते रहो, 1-2 दिन तक ऐसे ही चलता रहे. ऐसे चलता रहेगा. हाँ, 1-2 दिन तक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पूरा. वैसे भी वीकेंड है तो पूरा नॉन स्टॉप कर देते हैं जावेद भाई. गो अहेड इरा, कुछ और पूछना चाहोगे फिर मैं आता हूँ. हाँ, no, definitely. Sanjeevi, if you have any questions, because I wanted to move on to the social work and also लेकिन उससे पहले हाँ, गो अहेड जावेद भाई. मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि जी, देखिए, आपने मेरे हर जॉनर के गाने सुने हैं, लेकिन अभी एक हाल ही में एक बंदिश बैंडिट करके एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत अप्रिशिएट हुई है, और पूरी दुनिया से मुझे उसके गाने के बारे में इतने फोन, इतने मैसेजेस आए हैं कि मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया कि ना ये गाना इतना लोगों को पसंद आया. जबकि ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ था तो मैंने सोचा नहीं था कि इस लेवल तक जाएगा ये गाना. तो आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इस गाने के लिए इतना सारा प्यार दिया, और वो भी एक क्लासिकल गाना. वो भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज का इतना फास्ट जमाना, और आजकल इतने रिक्रिएशंस हो रहे हैं, इतने नए पुराने गानों का रिक्रिएशंस हो रहे हैं, उनमें एक फ्रेश गाना जो कि क्लासिकल है, वो इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आप इस तरह का म्यूजिक भी पसंद कर रहे हैं. और मैं एक बात दिल से कहना चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है, उनको जब अच्छा गाना दिया जाएगा, अच्छा म्यूजिक पेश किया जाएगा उनके सामने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको नकार देंगे, उसको बहुत सराहना पे लेंगे. perfect timing, जावेद जी, because I was going to come to बंदिश बैंडिट्स. लब पर आए का जो गाना है, जो क्लासिकल एकदम है, रिक्वेस्ट में भी है, और इसके पहले भी हम बात कर रहे थे कि उसी बारे में गाना गाएंगे भी, उसके बारे में बात करते हैं. So do you want to talk more about this and sing the song also? रिक्वेस्ट में भी काफी लोग बोल रहे हैं. हाँ, because ये गाना जो है ना, मुझे ऑफ कोर्स शंकर जी ने फोन किया था इस गाने के लिए, और उन्होंने कहा था कि ये गाना जावेद को गवाओ, क्योंकि ये एक ठुमरी है, और ठुमरी का जो अंदाज होता है उसमें थोड़े नाज और नखरे होते हैं, और बहुत नखरीलापन होता है, थोड़ी सी लचक होती है गायकी में. तो जब ये गाना मैं गाने के लिए गया, लब पर आए, तो शंकर जी मौजूद नहीं थे. मैंने ऐसे एक रन थ्रू गा दिया. तो कुछ दिन तक फिर ना मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने अच्छा गाया है बुरा गाया. तो फिर शंकर जी का कॉल आया और कहा कि जावेद, उस गाने के लिरिक्स चेंज हुए हैं और आपको दोबारा से आके डब करना पड़ेगा.
तो आई सेड मैंने ठीक है चलो लेट्स गो फॉर। तो मैं गया और फिर जब ये गाना हम लोगों ने 2 नोट और ऊपर किया और जब शंकर जी ने मुझे डब करवाया तो उस गाने की बात ही कुछ और हो गई। और इस गाने में बहुत ही खास बात यह है कि एक बहुत छोटी सी जगह रखी है उन्होंने कंपोजिशन वाइज से, जो कि इस गाने की हाईलाइट पॉइंट है। ये जो जगह रखी है ना, ये बहुत ही ट्रिकी है और द क्रेडिट गोज टू शंकर महादेवन जी, शंकर एहसान लॉय जी, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन बनाई। ये गाना हिट होने के बाद में फिर मुझे शंकर जी का भी कॉल आया, एहसान का कॉल आया कि यार हर इंसान इस गाने के बारे में बात कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। आइए मैं ये गाना सुनाता हूँ आपको प्लीज। हाँ, मैं इस गाने के लिरिक्स निकाल लेता हूँ। लब पर आए लिरिक्स। Listeners of Radio Zindagi on East Coast to West Coast. This Friday afternoon, our featured artist is Javed Ali. और जैसे वो बता रहे थे कि जो गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ है, एज मैटर ऑफ फैक्ट इरा जब हम ये शो शुरू कर रहे हैं, जब से शो शुरू किया है तब से इस गाने को लेके बहुत सारी फरमाइश आई है। लब पर आए फ्रॉम बैंडिट्स। तो जावेद जी शुरू कर रहे हैं गाना गाने के लिए, चलिए जावेद। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने। याद तिहारी आए सताने, मन लागे रे पछताने। हो मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया, बलमवा ना जाओ परदेस। सजना जी करूं मैं कैसे राजी, पिया जी लागे जिया को ठेस। हो मन की पीड़ा कोई न जाने, मन ये जाने मैं जानू, न जाने बैरी ये दुनिया। आए न बादल नीर बहाने, मन ही जाने मैं जानू, न जाने बैरी ये दुनिया। लड़ पछताऊं समझ न पाऊं, रूठ पिया को कैसे मनाऊं। भेद जिया के कैसे दिखाऊं, किसको बताऊं कलेश हो। कन्हाई न छोड़ रे कलाई, दुहाई भूल न जा दरवेश। मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया, बलमवा ना जाओ परदेस। लाग जिया को ठेस, लाग जिया को ठेस, लाग जिया को, लाग जिया को, लाग जिया को ठेस। क्या बात है, that Super, was so beautiful. जावेद भाई सुपर। जावेद भाई, जावेद भाई क्या आपको लगता है कि ये जो गाना है perhaps one of the most toughest or challenging songs for you to sing so far in this, you know, So in far. your career?
आई थिंक ये गाना उन गानों में से एक है कि जो मुझे काफी, ये गाना टफ तो ऐसा नहीं लगा मुझे, बिकॉज ये गाना हम लोगों ने विद इन 45 मिनट्स और 1 आवर ये गाना डब कर लिया था। क्या Really? बात करते अरे हैं, वाह। really? आई स्वेयर Wow. ऑन गॉड, बिकॉज ना मैंने ऑलरेडी इस गाने का एक बार एक रन थ्रू गाया था, और जब मैं शंकर जी के साथ में ये गाना डब कर रहा था तो उन्होंने इतनी फास्ट, क्योंकि मुझे लर्न करके आया था मैं गाना, और मैं 45 एंड 1 आवर के अंदर मैंने ये गाना डब कर दिया था। और शंकर जी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से बहुत कम सिंगर है हमारी इंडस्ट्री में, मैं ये नहीं कहूँगा मैं अकेला हूँ, लेकिन बहुत कम सिंगर हैं जिनमें से आप एक हो कि जो इतनी जल्दी ये गाना गा सकते हो। तो ये बहुत बिल्कुल। बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे था। बिल्कुल बिल्कुल, यस, Great. ब्यूटीफुल। जावेद जी इतने सारे काम करते हैं, राइट कर चुके हैं, बचपन से गा रहे हैं, और अब के टाइम पे जो रियलिटी शोज में जज बनते हैं, मेंटोर बनते हैं, गाइड बनते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? एंड ऑल्सो हाउ डज इट फील ओवरवेलमिंग, क्योंकि किसी के बकायदा पूरे करियर की, पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी आपके ऊपर जो होती है, क्योंकि किसी का भी करियर मेक या ब्रेक हो सकता है उस चीज से, तो वो कैसा रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब भी रहता है, बहुत मजेदार भी होता है, और बहुत ही एक मजा आता है एज अ जज आपको करने में, बट बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि आपको सोच समझ के किसी भी आर्टिस्ट के बारे में, किसी भी टैलेंट के बारे में आपको बोलना पड़ता है, और ऐसे ही कुछ अनाप शनाप आप किसी के बारे में कह नहीं सकते। तो उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए, उसको बुरा ना लगे या फिर उसको अच्छा लगे, ऐसी कोई बात करना। और साथ ही साथ आपको करोड़ों लोग देखते रहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए किसी भी रियलिटी शो को जज करना होता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लोगों का बहुत प्यार मिलता है, और मुझे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट यूएस से बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि जिस आप बताते हो और आप गा के सुनाते हो, कोई किसी की मिस्टेक हुई या किसी ने कोई अच्छी चीज गाई कोई गाने में, तो आप गा के बताते हो कि ये आपने अच्छी जगह ली है, ये जगह और अच्छी हो सकती थी। तो वो एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है एक एज अ जज, ना कि आप है ना कुछ दूसरी बातें कर रहे हो या फिर आप कुछ और बातें कर रहे हो कि जो प्रोग्राम से रिलेटेड ना हो। तो एक बहुत ही जबरदस्त काम होता है और बहुत ही मजा आता है एक कोई भी रियलिटी शो जज करने में, सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। But you've been doing a fine job. बड़ा मजा आता है आपको देखने का, आपकी बातें सुनने का रियलिटी शो में, और जिस तरह से आप इनफैक्ट मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट ये भी मिलते हैं कि आप जिस तरह से ना बताते हो या बोलते हो वो बहुत अच्छा लगता है। जो जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो या उर्दू आप यूज करते हो लैंग्वेज में, तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही ग्राउंडेड लगती है। तो मुझे ऐसा मैं बनता नहीं हूँ, ऐसा मेरा नेचर ही ऐसा है। बिल्कुल, तो आप वो नेचुरली ऐसे हो, बिल्कुल। और आप तो वैसे भी कभी किसी के बारे में अनाप शनाप तो बोलते हो ही नहीं, वो मुझे पता है। तो वैसे भी नहीं बोलते तो फिर शो में कैसे बोलोगे? वो तो हो ही नहीं सकता, हमेशा मीठा बोलते हो और हमेशा अच्छा ही सोचते हो सबके बारे में, जावेद भाई। नहीं, एक चीज ये होती है ना संजीव, दैट व्हेन यू आर इन दैट चेयर, जब आपके पास में उस तरह की पावर होती है, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को थोड़ी एरोगेंस भी हो सकती होगी। इसलिए मेरा ये सवाल था कि उस तरह की पावर जो आपके हाथ में आती है, तो क्या वो अलग लेवल से डील करनी पड़ती है? व्हाट डू यू डू विद दैट काइंड ऑफ पावर? इज दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। मैं वो पावर के साथ में उतना ही आप क्या कहते हैं ना कि ग्राउंडेड हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो पावर का आप ओवर मिस यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आपको ना लोग कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहना शुरू कर देंगे कि आपको जमीन पे आना पड़ेगा। तो मैं तो उस चीज का बहुत ख्याल है, जमीन पे आना पड़ता है। फिर कहीं ना कहीं आपको वो नौबत ना आए और आप जो है और जो आप फील कर रहे हैं बस वो फील लेकर आप ना किसी के बारे में बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, awesome. Okay. Ira, anything else from your end, or I just want more songs. I just have more songs to request. But if you have a question, Sanjeev, definitely. Well, I do have a question, and there is just something that I want listeners of Radio Zindagi to know about this very special thing. और उसके बाद फिर मैं जावेद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा गाना गाए। सबसे पहले जावेद भाई, जब आपने AR रहमान साहब के लिए गाना रिकॉर्ड किया था अर्जिया,
वो वहीं पे आप गए थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और कैसे वहीं पे गाना रिकॉर्ड किया था वो मैं पूरी कहानी जानता हूँ। वहीं से लेके अभी जो आपने बात करी इश्क कमाल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई सी दिस सेटिस्फैक्शन, आई सी द हैप्पीनेस on your face when you just talked about इश्क कमाल, because अर्जिया की बात आती है ना, तो आप में एक अलग से पता नहीं, एक अलग सी एक बॉडी लैंग्वेज आपकी वो बदल जाती है ना। यू आर सो ग्रेटफुल दैट रहमान साहब ने आपको वो गाना दिया था। तो ये मैं जानता हूँ। हाँ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रहमान सर का कि इतना बेहतरीन और इतना लाजवाब गाना, और इस तरह के गाने बहुत कमी के साथ बनते हैं, सालों में बनते हैं इस तरह के गाने, और बहुत लकी होता है वो सिंगर जिससे वो इस तरह के गाने मिलते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये गाना मिला, और ये गाना ऐसा है कि सालों साल याद रखा जाएगा, और कहीं ना कहीं जावेद अली की पहचान भी है ये गाना, इस तरह के गाने ऑफ कोर्स। तो बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रहमान साहब का, एंड ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस का, हमारे फैंस का। अब जावेद भाई, एंड ऑफ ये कोर्स जो बात प्रसून जोशी जी ने इतना खूबसूरत लिखा है। हाँ जी, प्रसून बिल्कुल। जोशी जी ने लिखा है ये गाना, कमाल। और आपने गाया है और रहमान साहब का म्यूजिक है। सबसे पहले तो 2 लाइन उसकी सुनाइए, और ये जो जर्नी है इसके बीच में एक बहुत ही अच्छी बात आपके लिए बनी थी, वो मैं बाद में पूछता हूँ, लेकिन अर्जिया की बात हुई है तो प्लीज उसकी जो भी लाइंस आपको सुनानी है जरूर सुनाइए हमारे लिसनर्स के लिए। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारें दरारें है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस जावेद भाई। एंड जब भी आपसे जिक्र होता है, आपकी बात होती है, आपसे बातें होती है, तो यही गाने की 2 लाइन तो सुननी मांगती है। अच्छा इरा, मैं एक बात और जावेद भाई से पूछना चाहूंगा। जावेद भाई बताएंगे कि जावेद भाई ये एक आपकी करियर में जो सर्टन माइलस्टोन्स आए, एक दिन तेरी राहों में, फिर ये अर्जिया, एंड देन इश्क कमाल, इन बिटवीन एक बात आप के लिए एक ऐसी बनी जो आपके दिल के बहुत करीब है, और मैं हमारे लिसनर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ। और उसके साथ में सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्लियर इन द वीक वी सेलिब्रेटेड लता जी's बर्थडे, 91st बर्थडे। और जावेद भाई सबको बताइए कि लता जी ने आपको वो जो यूनिक गिफ्ट दी थी, तब आपको कैसा लगा था, एंड देन व्हाट वाज योर रिएक्शन, और किस बात को लेके लता जी ने एक बहुत ही खूबसूरत आपको गिफ्ट दी थी बिकॉज आपका कोई गाना सुन के। जी देखिए, हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत ही एजाज की बात है, बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि जिनको पूरी दुनिया, जिनको बड़े से बड़े और जिनको सरस्वती कहा जाता है, उन वो अगर ना आपको अप्रिशिएट करती हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है, और बहुत ही किसी अवार्ड से कम नहीं है, किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं है। मेरा एक गाना ऑफ कोर्स दीदी ने सुना था, लता दीदी ने, कि कोई तेलुगु तमिल गाना था, और उसका म्यूजिक किया था शिवामणि जी ने। और वो गाना सुन के मुझे उन्होंने कॉल किया, और उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी और बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और आपका गाना मैं सुनती हूँ, और आपको मैं बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। और उनसे उनके बर्थडे पर ये भी पूछा गया कि आपको फिलहाल इंडस्ट्री में कौन कौन सिंगर्स अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने मेरा नाम भी उस लिस्ट में लिया कि मुझे जावेद अली भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट आशा जी ये बात कहती है कि ना, मुझे जावेद अली, ऑफ कोर्स आशा जी के साथ तो मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए, यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, हर जगह, लंदन, हर जगह। तो दोनों आशा जी और लता जी
मुझे बहुत प्यार करती है। और लता जी की बात कर रहे थे हम लोग, तो लता जी ने मेरी वाइफ को ज्वेलरी भेजी, बहुत ही खूबसूरत। मेरे लिए कुरान पाक भेजा छोटा सा, और बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे उन्होंने मुझे घर पे आशीर्वाद के तौर पे। सो आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि ना उन्होंने इतना मुझे प्यार दिया। वो जो इरा जो कुरान की बात कर रहे हैं ना, इतना ही छोटा सा कुरान, बट इतना इट्स अ छोटा वन सा यूनिक कुरान पाक पीस। भेजा था, हाँ हाँ। और वो मैंने अपने एक सेफ लॉकर में रखा हुआ है, और मैं हम्म। उसको, बहुत ही छोटा सा, इतना सा, वो बहुत यूनिक है, और वो उन्होंने मुझे भेजा था। हम्म, बिल्कुल जावेद भाई। और जैसा आपने कहा कि किसी भी अवार्ड, किसी भी रिकग्निशन से सबसे बहुत बड़ी बात है तो ये है, एंड यू नो यू रिसीव दैट फ्रॉम लता जी, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए ठीक है इरा, अभी धीरे धीरे हमारा वक्त बढ़ता जा रहा है, एंड Absolutely, we are very close to the end of our show. लेकिन ये दो गानों की जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास में डेफिनेटली है। एक है कुन फाया कुन, और एक है जो आपका इस साल का अल्टीमेटली एक्सट्रीमली मल्टी ब्लॉकबस्टर तरीके से ब्लॉकबस्टर वाला तेलुगु सॉन्ग जो आपका फेमस हुआ है, दैट जी। इज नी कन्नू नीली समुद्रम, जो तेलुगु में है और सुपर हिट है। उसके मैंने सुने हैं कि 128 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज, कोई भी प्रमोशन नहीं करनी पड़ी, लोगों ने खास करके उसको इतना पसंद किया। सो ये दो गाने जो यस, हैं, नी कन्नू नीली समुद्रम। Here are some matching videos. Okay. One sec. नी कन्नू नीली समुद्रम लिरिक्स। लिसनर्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जावेद अली जी हमसे बात नहीं कर रहे, वो अपने स्मार्ट डिवाइस से बात कर रहे हैं और उसके गाने के जो बोल है वही वे पुल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओके, सॉरी, सो सॉरी। कोई ओके बात नहीं। ओके, पहले मैं कुन फाया कुन आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आई सिंग नी कन्नू नीली समुद्रम। या निजामुद्दीन औलिया, या निजामुद्दीन औलिया, या निजामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदका रसूलुल नबीयुल करीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या बात है, एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग. थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दैट. आंख बंद करके खो जाने का मन करता है ये सुन के. थैंक यू. ओके, अब संजीव. नेक्स्ट. अब वो ले आते हैं हमारा गाना. अब देखो स्मार्ट डिवाइस से फिर से पूछो कि तैयार है वो आपको लिरिक्स देने के लिए. यस यस यस, ही इज रेडी. वेरी गुड. इश्क सिफाया, इश्क शिफाया, इश्क पर्दे में किसी की आंखों में लबरेज है. इश्क शिफाया, महबूब का साया, इश्क मल मल में ये लिपटा हुआ तबरेज है. నీ కన్ను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. నీ కన్ను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. నీ నవ్వు ముత్యాల హారం నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం. నల్లనైన ముంగురులే అల్లారేదో రేపాయిలే, నువ్వు తప్ప నీకం నాకింకో లోకాన్ని లేకుండా కప్పాయిలే. గల్లుమంటే నీ గాజులే, జల్లుమంటే నీ ప్రాణమే, అల్లుకొండి నాన్వాన జల్లుంగా ప్రేమే. నీ కన్ను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. నీ కన్ను నీ నవ్వు ముత్యాల హారం నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం. वाह, वेरी नाइस जावेद भाई. अब एक काम करो, इसी गाने को हिंदी में ट्रांसफर करके गाओ. ओके. ओह, इस गाने के लिए फिर मुझे ना आप एक काम कीजिएगा, जी. मुझे 1 वीक का टाइम दीजिए, मैं आपको नहीं इसको नहीं, ट्रांसलेट करवा हमारे के पास and then 2 मैं दिन उसका- है. मैंने कहा हमारे पास 2 दिन है, संडे तक ये बिल्कुल जारी रखते हैं. पूरा हिंदी में ट्रांसफर करके हिंदी में गाओ. You know what you say, right? I'll try my level best. I'll try my level best. I'll translate from somewhere else. Beautiful, संजीव तो beautiful. चाहते हैं कि आप 2 दिन तक गाना गाते रहे, मीनवाइल हाँ. साइड में आपका स्मार्ट डिवाइस ट्रांसलेट करे, फिर आप संडे को हमें ये गाना सुनाएं. There you go. बिल्कुल, that would be wonderful. That would be a what a treat. But this was great. This was amazing, जावेद भाई. पता It नहीं ये was सारी fun. लैंग्वेज इसमें आप बिल्कुल अपनी जो ओरिजिनलिटी है ना, जैसे मैं ये गाना सुन रहा था और कहीं ना कहीं पे मैं किसी हिंदी गाने के साथ कनेक्ट कर रहा था. जो ओरिजिनलिटी आप रखते हो कि जावेद अली की जो स्टाइल है, उनके जो गाने का वो इनकी आवाज है, गाने का अंदाज है, इट रिमेन्स द सेम. आपको एक चीज और खास बताना चाहूंगा इस गाने के बारे में. ये गाना ना जब मुझे ऑफर किया गया था, देवीसी प्रसाद जी जो कंपोजर हैं इस गाने के, तो उस वक्त मेरा गला बहुत खराब था और उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये गाना आपके अलावा कोई नहीं गाएगा. आई विल वेट फॉर यू, जब तक आपका गला ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं वेट करता हूँ. तो मैंने उनको तकरीबन 1 महीना तक ये कहा कि सर मेरा गला ठीक नहीं है, मैं नहीं गा पाऊंगा. यहाँ तक कि मैंने ये सोच लिया था शायद ये गाना मैं छोड़ दूंगा. आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं सच में बता रहा हूँ आपको ये बात, मैं ये गाना छोड़ने की तक में सोचा था. और मैंने उनको ये फिर जब 1 महीना हो गया और उन्होंने उनके बार बार मुझे कॉल आ रहे थे, उनके जो सेक्रेटरी थी उनके बार बार मुझे कॉल आ रहे थे कि जावेद जी ये गाना आपका आप कर सकते हैं हम लोग. तो मैंने कहा ठीक है, आप है ना बॉम्बे आ जाइए. तो तभी ये लॉकडाउन से पहले की बात है. तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग बॉम्बे आ जाते हैं. फिर किसी कारण की वजह से वो बॉम्बे नहीं आ पाए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया सर आप प्लीज कैसे भी करके आप आ जाइए, चेन्नई आ जाइए, मैं ये गाना आपके साथ में ही रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज. तो मैंने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं. गला खराब था मेरा और ये गाना मैंने गला खराब में ही गाया. आप बिलीव करेंगे मेरा गला बहुत खराब था और मैंने कहा चलो ठीक है, अब इतनी मैं एक कंपोजर है, बहुत रिस्पेक्टेड है और उनको मैं बहुत ज्यादा मना नहीं कर सकता, एटलीस्ट कम से कम जाना चाहिए. तो मैं गया और ये गाना उसी खराब आवाज में रिकॉर्ड किया, लेकिन इतना अच्छा निकल के आया और इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हो जाएगा ये गाना मैंने सोचा नहीं था. उपेना इस फिल्म का ये गाना है, जबकि ये फिल्म भी रिलीज नहीं हुई है और इस गाने को 128 मिलियंस ऑर्गेनिक व्यूज मिले हैं. ऑर्गेनिक व्यूज. क्या बात कर रहे हो जावेद भाई, आप ठीक नहीं कह रहे हो. 128 नहीं 129 मिलियन हिट्स हो गए अब तो. 129 हो गए. अच्छा तो मैं पीछे रह गया. जैसे ही रेडियो जिंदगी के आपका इंटरव्यू शुरू हुआ ना, ऑलरेडी मिलियन हिट्स बढ़ गए. देखो अभी 129 मिलियन हिट्स है. आई एम सो हैप्पी. अब पता चला ना रेडियो जिंदगी का पावर.
Yes, It's of okay. course, It's of okay, course. Javed ji. You're हम लोग absolutely मिलते रहेंगे। welcome. No problem at all. That's okay. It's our pleasure. Anytime, we love you, so we'll do it for you. You know, next week अगर आप फिर से आओगे तो देखना ये 135, 1 million 140 फिर million बढ़ तक पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम Because 1 घंटे every- में 1 मिलियन बढ़ा देते हैं। जी every 2 days ना 1 हाँ। million increase हो रहा है ये। जी बिल्कुल। क्या बात है, अभी और- एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो मैंने गले खराब में ये गाना इतना फेमस हो अभी गया, इतना बिल्कुल ब्लॉकबस्टर अभी हो और गया, भी क्या बढ़ता बात है। जाएगा। अच्छा जावेद भाई ऑलरेडी इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। यस यस। हाँ मैं Seriously. एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इट जस्ट केम टू माय माइंड सो आई हैव टू आस्क यू। जब ये हम रीजनल गानों की बात कर रहे हैं और तमिल तेलुगु में आपके इतने सारे पॉपुलर गाने हैं, मैं चाहता हूँ आप कुछ एसपी बालासुब्रमण्यम साहब के बारे में कुछ कहे। वी लॉस्ट हिम एट यू नो ओह वेरी यस यस सून। यस यस। कुछ भी Yes. अगर बात शेयर कर सकते हो जावेद भाई, इट वुड बी वेरी नाइस। मैं ऑफ कोर्स उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और कौन उनका फैन नहीं है। और बालू सर, बालू सर कहते हैं हम सब लोग प्यार से उनको, रिस्पेक्ट में। और उन्होंने जो काम किया है, एक लेजेंडरी, एक बहुत ही सालों साल और हमेशा के लिए याद रखने वाला काम किया है उन्होंने। और उनकी मेरी एक पर्सनली ऐसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने काफ़ी बार सुना है कि जितना मैं उनको प्यार करता हूँ, वो कहीं ना कहीं वो भी उतना मुझे बहुत लाइक करते थे। ये मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, साउथ के मेरे कलीग्स हैं। और मैं उनका बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन था जब से मैं उनके गाने, ऑफ कोर्स एलपी के कुछ बहुत सारे गाने, तेरे मेरे बीच में ये फिल्म, वो सब गाने जो मैंने सुने थे। फिर प्लस अगर आप देखें मैंने प्यार किया, और ये सारे गाने, हम आपके हैं कौन, उन्होंने क्या काम किया है। मतलब अपने 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 वक्त में उन्होंने, और आज तक उनका, मैंने लास्ट ईयर का कोई कॉन्सर्ट देखा था, उन्होंने क्या सुरीले गाते थे वो। और उनको मैं बस यही अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और उनके परिवार वालों को हौसला दे परिवार, क्योंकि कितना भी हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बहुत जल्दी चले गए। और हम कुछ और गाने उनसे और सुनते थे, और उनका म्यूजिक एंजॉय करते थे। एक और बहुत सिमिलैरिटी है हमारा, एक गाना उन्होंने हिंदी में, तमिल में गाया था। शिवाजी फिल्म आई थी रजनीकांत जी की, और वो गाना मैंने सेम गाना हिंदी में गाया था रहमान साहब के लिए। अरे वाह, यस, ये काफी सिमिलैरिटी है हम लोगों की। मैं भूल रहा था, तो दो लाइन सुनाइए उस गाने की, उस गाने की दो लाइन। उस गाने के है बल्ले लक्का मद्रास का मुंबई का, बहुत काफी दिन हो गए गाने को गा के। सड़े गुड़े 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 दरे 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 दरे। It's a very tricky song. It's a very sounds like a fun difficult, fast number. Yeah, difficult. It's one of difficult song of mine. मीठा 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 घी का हलवा, चुक 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 रेल की गेड़ी, दग 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 दग। हे बल्ले लक्का मद्रास का मुंबई का, धंधा रे धन्ना रे रोहिया। हे बल्ले लक्का मद्रास का मुंबई का, धंधा रे धंधा। वर्ड्स याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन ये ट्यून थी। अच्छा, वर्ड्स याद नहीं आ रहे, तो ये जो थी बिल्कुल ऐसे ही हमने गा लिया है। जितना भी याद आया आपको अच्छा लगा यार, यू नो मस्ट भी बहुत मस्ती वाला गाना होगा ये। बहुत ही मस्ती वाला गाना था। तो ये गाना भी उन्होंने तमिल गाया था, मैंने हिंदी गाया था। और मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत मिस करेंगे हम लोग बालू सर को, और बस उनकी आत्मा को शांति दे ऊपर वाला। ये वाले जो लॉसेस होते हैं ना, ये कभी वापस भर नहीं सकते। ये वो वॉइड होते हैं, जो ऐसा लाइफ में हमेशा फील होता है। आर्टिस्ट एक ऐसा नायाब हीरा होता है कि जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल होती है। हर इंडिविजुअल एक अपने आप में एक कोहिनूर हीरा है, हर इंडिविजुअल आर्टिस्ट। तो उसकी जो कीमत है, वो उसके रहते, जब वो जिंदा है, जब वो कायम है, हर इंसान उस वक्त करे। बस मैं ये चाहता हूँ। वेरी वेल सेड जावेद भाई, वेरी वेल सेड। अच्छा, जाने से पहले इरा, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स, नहीं तो फिर मैं दो बातें कहना चाहूंगा।
आप बिल्कुल दो बातें कही है एक तो संजीव। एक काफी तो सारे सबसे हमने पहले रिक्वेस्ट आ रहे हैं, रिक्वेस्ट हम आते और रहेंगे। देयर आर हाँ पीपल हु बिल्कुल वांट टू लिसन टू सॉन्ग्स, रफी साहब के गाने दीवाना हुआ, बादल एंड सो मेनी अदर सॉन्ग्स, बट वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ आवर शो, सो योर दो बिल्कुल बातें एंड देन एंड विल हैव टू टेक जस्ट दो बातें बिल्कुल। जावेद भाई सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सैन फ्रांसिस्को से लेके न्यूयॉर्क तक एवरीवनस वेटिंग फॉर यू टू कम टू यूएसए, कब यस। आओगे? मेरा जल्दी एक्चुअली लॉकडाउन हो गया, नहीं तो मेरा यूएस का टूर था, अप्रैल में मैं आने वाला था, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर का कुछ ऐसे प्लान तो बन रहा है आने का। होपफुली वी सी यू हियर कुछ नेक्स्ट ईयर, सामने स्टेज पे देखेंगे, यहाँ सामने आपको कुर्सी पे बिठा के इंटरव्यूज में बातें करेंगे। डेफिनेटली ये पेंडेमिक जरा ठीक हो जाए और बस हम लोग जी। सब प्रे करेंगे कि ना ये पेंडेमिक खत्म हो जाए, इसका वैक्सीन आ जाए या फिर ये खत्म हो जाए पूरी तरीके से, और हम लोग जिस तरह से मिलते थे, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते थे, उसी तरह से हम वापस से ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं। बस होपफुली मैं नेक्स्ट ईयर सब प्लान चल रहा है कि जरूर आऊंगा। चलो वेरी गुड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे तो जावेद भाई मुझे पता है कि मैं और आप तो यहाँ पे बैठ के 2 दिन तक गा सकते हैं, बट ईरा जो है ना उसका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, शी हैज टू सेलिब्रिटीज एंड शोज। हाँ तो हाँ, और अगर ईरा साथ में ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। सो हमें यहाँ पे इस बात को तो अभी थोड़ी देर में एंड करना होगा बिकॉज शी कीप्स अ वेरी बिजी स्केड्यूल। तो कोई बात नहीं, हाँ नेक्स्ट टाइम हम 24 आवर्स 48 आवर्स की मैराथन रखेंगे। जावेद भाई जाने से पहले आपका एक सिग्नेचर गाना जो है, आइकॉनिक गाना, जहां से पूरी दुनिया को पता चला कि एक जावेद अली राहों में आ गए हैं और वो बिल्कुल यहीं पे रहने वाले जाने वाले हैं नहीं, मैं चाहता हूं कि उस गाने की 2-3 लाइन हो जाए। एक दिन तेरी राहों में। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, ला 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 लाई 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 ला 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 ला। Wonderful, thank you so very much. Ira, your closing comments. Well, thank you so much, Sanjeev, for having this insight. इतनी सारी बातें जो आप, क्योंकि you've spent so much time with जावेद जी, जो छोटे छोटे stories आपने निकाली, and then we heard from जावेद जी in detail. Thank you so much for that, जावेद जी. Thank you so much for being here with us for 1 घंटे से ऊपर से हम लोग बात कर रहे हैं, for taking out time out of your precious schedule, इतना लेट वहां पे हो रहा है, so thank you for being here. Hopefully we see you here next year in person on stage performing. जो जादू जो लोग 2 साल पहले देख चुके हैं उसे फिर से देखें. I'm sure it's going to be a houseful show. Thank you so much and thanks to all my fans जो मुझे देख रहे हैं all over the world, जहाँ से भी लोग मुझे comments दे रहे हैं. I होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं जरूर आऊंगा और हम सब मिलकर एक साथ दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि ये पेंडेमिक खत्म हो जाए और हम एक दूसरे से को हक करें, एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे को बहुत अच्छे से मिलें और उसी तरह परफॉर्म करें जिस पैशन के साथ में हम लोग परफॉर्म करते थे आमने सामने बैठ के. Thank you so much once again. जरूर होगा जावेद भाई. Thank you so very much, Javed bhai. As you know, how much I respect you and how much I know you. So my best wishes are always with you. लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इस पेंडेमिक में जो भी आपके गाने आए, they
have really become very popular, and एक बार फिर से सब आपने सबको जगा दिया है, मतलब you have surprised everybody. So my best wishes. We're always with you and we'll always be with you, brother. I love you. Thank you very much. Thank you so much, Sanjeev ji. And जाने से पहले जावेद भाई, मैं आपको एक नाम देना चाहता हूँ, बिकॉज अभी इतने सारे गानों की बात हुई और सड़क 2 का गाना जो है इतना पॉपुलर हुआ है, तो आज से मैं चाहता हूँ कि हम आपको बुलाएंगे जावेद अली कमाल. जावेद अली That कमाल. is nice. जावेद अली कमाल. Thank you, sir. कमाल तो आपने कर ही दिया है पैंडेमिक में, तो आपसे नाम चेंज करते हैं. आपने ना संजीव जी मैंने ना इस पैंडेमिक में ना इतने गाने रिकॉर्ड किए घर पे, फोन पे रिकॉर्ड किए मैंने. अरे वाह. तकरीबन मैंने 15 to 20 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए 2-3 महीने के अंदर मैंने, और सब मैंने फोन्स पे, और सारे गाने ऑफ कोर्स फिल्म के गाने तो नहीं किए, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ जिंगल्स किए, कुछ से कोविड के लिए गाने किए, बहुत सारे गानों में था मैं. वेरी गुड. और तो बहुत मजा आया. ये भी एक अलग, हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई. और मैं सबको बता दूं कि जावेद अली की खुद की यूट्यूब की चैनल भी है, और वहीं पे जाके जावेद अली के बहुत सारे गाने भी सुन सकते हो. राइट जावेद भाई? लॉकडाउन काफी प्रोडक्टिव रहा आपके लिए. लॉकडाउन काफी प्रोडक्टिव रहा, घर में बैठ के काफी आपने प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम जो है वो किया है. टचवुड. Amazing. Lucky for us. Yep. Thank you once again. Take care of yourself. Regards to everyone in your family, Javed bhai. You too. And जैसा ईरा ने कहा कि next week definitely हम यहाँ पे मिलेंगे, and hopefully everything will be okay by then. Next and you year. Continue to do great. And wherever we can talk about your any upcoming project or song, just reach out to us, and Radio Zingi will do it for you. Absolutely. Sure. Apart from the interview, how's everything in US? How's the situation? ऐसा तो नहीं कह सकते बहुत अच्छा है, but we're still a little bit under threat, and news जो आ रही है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही. But one thing है कि इस pandemic में पॉजिटिव तो नहीं होना है, लेकिन we are staying positive in our attitude, and we're doing the best we can to fight this virus. और इसकी वजह से शायद situation better हो जाए, maybe by the end of the year. Let's hope. But हम लोग बाहर निकलेंगे ना इससे? हाँ बिल्कुल. डेफिनेटली निकलेंगे. पॉजिटिव नहीं रहते हैं, पॉजिटिव नहीं होना है, बट पॉजिटिविटी जो है वो मेंटेन करके रखनी है. डेफिनेटली बाहर निकलेंगे जावेद भाई. बस सब दुआ करते हैं और सब दुआ करते रहेंगे, एंड गॉड विलिंग विल कम आउट ऑफ इट वेरी सून. इंशाल्लाह. ओके, चलो अपना ख्याल रखना. वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच. Bye-bye. And a big thank you to Yogesh. Yogesh really worked hard, so Yogesh को भी big thank you बोलना जावेद भाई. Definitely. Okay, chalo. Thank you. Ira, thank you, and so thank you, much. listeners. Thank you very much for being here, and thank you, viewers. Also, this interview is going to remain on the Radio Zindagi Facebook page, so we can always revisit this show over there and hear Javed Ali singing those songs, our favorite songs, again and again. Thank you, Sanjeev. All right, thank you so very much, Ira.